now not, it is ban on recording, I think. Yesterday I've done recording. Okay. Okay, okay. So we talk about ideal operational amplifier. So we have finished this. Means in last lecture I have shown you the PPT, and through this PPT we have finished these 4 stages of block schematic of operational amplifier, which constitute input stage, intermediate stage, level shifting stage, and output stage. And in short, we have studied the significance of each stage at your level. For first year level, we need surface level content, so that we have done. And now we will talk about what are ideal and practical operational amplifier, and we'll see one parameters of this ideal and practical op amp one by one. Number one, is it visible at your end? Voltage gain. Yes, Hello? sir. Yes. Voltage gain is nothing but output voltage divided by differential input voltage. Why differential input voltage? Because there are two different input coming towards the op amp. One is called inverting operational inverting terminal, and another is non-inverting terminal. Inverting terminal is in negative sign, and non-inverting terminal is in positive sign. So two different input voltages are coming towards op amp, and your differential input voltage is either V1 minus V2. V1 may be non-inverting voltage, V2 may be inverting voltage. So V1 minus V2 is the differential input voltage, and output voltage is VO. So the gain is given by VO divided by VD. Okay, VO divided by VD. Ideally, there should not be any differential input voltage. So that means the input voltage coming towards the, for ideal amplifier, it should be same. So there should not be any difference. So if this is the case, your your differential input voltage is 0. Okay, then your voltage gain is infinity. So your differential input voltage is 0, then voltage gain is infinity. That is infinite. So ideal op amp, you will observe the voltage gain is infinity. But practically for IC741, which is invented by Robert Widlar, which is a 8-pin IC, the voltage gain is a few thousand. That is 2 into 10 raised to 5. So for ICs, for different ICs, you will have a different voltage gain. So this is 2 into 10 raised to 5. There is no unit for voltage gain. Voltage gain is unitless quantity. That is, output is a voltage, input is a voltage, so it is a ratio, so it is unitless quantity. Okay, so this is the first parameter, is the voltage gain. Clear? Now I am talking about the second parameter, is nothing but input resistance. Sir, you are not audible. सर वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही सर. Sir, you are not audible. Please check your. सर लेफ्ट हो गए क्या?
हाँ सर चले गए, क्लास आएंगे 5 कैंसिल। मिनट में। नहीं 5 मिनट में आएंगे। हम भी चलते। चलते हैं रे ना फिर। ना ना, तो जाओगे तो सर फिर आ जाएंगे, दिक्कत है। इसीलिए तो सभी जाते हैं सर, आके क्या करेंगे। हम गए तो सर आके भी क्या करेंगे भाई। वही ना, सबके सब लेफ्ट कर जाते हैं। फिर से लिंक भेज देंगे। हाँ, भाई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। लिंक भेज दे तो ज्वाइन ही नहीं होंगे। अरे तुम नहीं होगे, हम नहीं होंगे, लेकिन बहुत से है जो ज्वाइन हो जाएगा। करने का मन नहीं, बस ज्वाइन ही होगा, पढ़ेगा नहीं, बस ज्वाइन करके रहना है बस हाँ, इतना। सबसे पहले अभिषेक ज्वाइन होगा। कहाँ है वो अभिषेक? एक दो स्टूडेंट से कुछ नहीं होता भाई। शुरुआत एक से ही होती भाई। हाँ ये बाकी बात सही। बाकी के साथ में आने चाहिए ना। देख रहे हो, शुरू अभिषेक मार्केट शुरू में तो रह कर भाई, के क्लास कर रहा है। चल शुरू तू तो हो कर। चले, चल तू हो जा, तू कर शुरू। वन फॉर वन, तो सिर्फ आपको सुनना है, आपको ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। सो hello, am I audible to you? Yes, sir. Yes, What sir. about the screen? I have Yes, sir. shared the screen earlier. Screen is not visible. Now it is visible. यस सर। I have Yes, already sir. shared the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I don't know whether why this happened. तो मैं यहाँ तक आ गया, आपका कहाँ से आपका मतलब मेरा लिंक कट हुआ, मेरा आवाज कहाँ से कट हुआ है? शुरू से। स्टार्टिंग से ही हुआ। What? सेकंड और थर्ड पॉइंट सर। ओके ओके, सेकंड और थर्ड पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है। सो मतलब इनपुट इंपीडेंस क्लियर हो गया है, आइडियली इन्फिनिटी है। सी एक्चुअली मुझे ये बोलना है आपको कि मैं एडिटिव पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, आइडियल ऑपैम्प के बारे में मुझे आपको पढ़ाना है। मतलब आइडियली ऑपैम्प में क्या क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर रहते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एडिशनली प्रैक्टिकल एम्पलीफायर जो रहता है ऑपैम्प IC 741, उसके रीडिंग आपको मैं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ओके, दिस इज फॉर योर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि वोल्टेज गेन इन्फिनिटी है आइडियली, बट प्रैक्टिकली वो है 2 × 10⁵, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी है, इनपुट इंपिडेंस है, बट प्रैक्टिकली आपका इनपुट इंपिडेंस है 2 मेगा ओहम, आउटपुट इंपिडेंस 0 है, प्रैक्टिकली 75 ओहम है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो एस टाइप का वोल्टेज है कि अगर आपके दोनों इनपुट वोल्टेज 0 है तो आपका आउटपुट वोल्टेज आइडियली 0 रहना चाहिए, बट ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन और इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, आपका आउटपुट ऑफसेट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 नहीं रहता, नॉन 0 रहता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट ऑफसेट। तो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू 2 मिली वोल्ट है फॉर IC 741। आइडियली वो तो 0 ही रहना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका इनपुट 0 है, आउटपुट शुड बी 0, बट ड्यू टू दिस सप्लाई वोल्टेजेस दैट यू आर कनेक्टिंग, व्हिच इज अ डुअल सप्लाई, एंड ड्यू टू दिस हैपेंड। ओके, सो वो आपका पिन नंबर 1 जो है वो वही काम करता है कि ऑफसेट नल वो नलीफाई करता है। ओके, तो योर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज शुड कीप टू 0, तो वो करने का काम वो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5 करता है, ठीक है। सो वो है। नाउ we are talking about input offset voltage is ideally it should be 0, practically it's 2 millivolt. Then we have input bias current IB. Input bias current है is the average of the current that comes towards the input. मतलब
आप क्या बोलती हो कि IB1 नाम का करंट आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल से ऑप एम्प को जाता है और IB2 नाम का करंट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से अगर ऑप एम्प के थ्रू जाता है तो इनपुट बायस करंट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ दैट. सो इनपुट बायस करंट, तो ऑलरेडी मैंने बोला कि बायस करंट जो करंट फ्लो थ्रू इंडिविजुअल टर्मिनल दैट इज जीरो, तो आइडियली तो डेफिनेटली इनपुट बायस करंट मस्ट बी जीरो. ओके, सो इनपुट बायस करंट इज जीरो. प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 50 नैनो एम्पियर. उसके बाद इनपुट ऑफसेट करंट. इनपुट ऑफसेट करंट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग. तो पहले से मैंने बोला कि करंट जीरो ही है प्रैक्टिक आइडियली, तो ये भी आइडियली जीरो ही रहना चाहिए, बट प्रैक्टिकली उसकी कुछ वैल्यू है एंड विच इज वेरी लेस, 6 नैनो एम्पियर. ओके, मुझे लगता है शायद से अभी ये तो मेरे हाथ में है कि इनसे मैं कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, बट फॉर अगर ये सेकंड यूनिट अगर यूनिवर्सिटी के पास रहता क्वेश्चन पूछने के लिए तो डेफिनेटली वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते कि प्रैक्टिकल के लिए. और प्रैक्टिकली IC 741 की इनपुट ऑफसेट करंट की क्या वैल्यू है, तो आंसर्स आर. सो उसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ. तो एक्चुअली उन्होंने नहीं, वो तो नहीं पूछेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी के एंड सेम एग्जाम में वो तो ये यूनिट है ही नहीं. थर्ड यूनिट से आपको एंड सेम एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछने हैं. देन वी हैव बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ इज इंफिनिटी. बैंडविड्थ का मतलब है कि उस इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसीज के रेंज में अगर आपने इनपुट सिग्नल दिए कोई भी, तो वो फेथफुली एम्पलीफाई करने का काम वो ऑप एम्प करेगा. तो ये अच्छा है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप एम्प. ऑप एम्प वाइड इज वेरी पॉपुलर एज कंपेयर टू MOSFET बेस्ड एम्पलीफायर एंड BJT बेस्ड एम्पलीफायर. वेरी फर्स्ट इज द उसका साइज कम है, और दूसरी चीज उसकी बैंडविड्थ इंफिनिटी. बैंडविड्थ ऑफ BJT एंड बैंडविड्थ ऑफ MOSFET हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ द गेन. तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है. बैंडविड्थ इज इंफिनिटी आइडियली हम बोल रहे हैं. प्रैक्टिकली इट्स फॉर IC 741 इट्स 1 मेगाहर्ट्ज. Then one more important term is called common rejection ratio. ये भी मैं surface level पे आपको सिखाने वाला हूँ. What do you mean by common mode rejection ratio? Let me tell you what is common mode. Common mode signal का मतलब है कि दोनों जो आपके टर्मिनल है, इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल में, उनमें दोनों टर्मिनल का जो कॉमन सिग्नल है दैट इज नथिंग बट बेसिकली नॉइज सिग्नल और डिस्टॉर्शन सिग्नल. वो सिग्नल दैट इज नथिंग बट कॉमन सिग्नल वो रिमूव करना. द एबिलिटी of that amplifier that removes this common signal, common mode signal, that noise or distortion, is called as common mode rejection ratio. This particular topic is called common mode rejection ratio. So basically उसका एक फॉर्मूला है. उसका फॉर्मूला है कि it is a ratio of differential gain to common mode gain. अभी डिफरेंशियल गेन कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज. ओके, बट व्हाट इज द कॉमन मोड गेन? तो कॉमन मोड गेन का मतलब है कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स को एक करके ग्राउंड कर दो, तो जाके जो आउटपुट वोल्टेज का आएगा दैट इज द आउटपुट वोल्टेज व्हेन योर इनपुट इज कॉमन मोड. तो फॉर्मूला ऑफ AD इज VO अपॉन VD. फॉर्मूला ऑफ AC इज VO अपॉन VC. VC का मतलब है कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज. ओके, तो ये इसका रेशियो है विच इज CMRR, और वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, और इसकी आइडियली वैल्यू इंफिनिटी. मतलब उसकी सबसे हाईएस्ट एबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरीके के अनवांटेड सिग्नल को रिमूव करने की उसकी हाईएस्ट एबिलिटी चाहिए. दैट इज नथिंग बट इंफिनिटी. आइडियली इंफिनिटी चाहिए. प्रैक्टिकली उसकी एबिलिटी है 90 डेसिबल. 90 डेसिबल इज द प्रैक्टिकल वैल्यू विच इज 31622. इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ अल्टीमेटली डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन, और वो डिफरेंशियल गेन वो खुद ही यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उनका रेशियो भी यूनिटलेस क्वांटिटी है. ओके, बट then the question is why it is in decibel? Because if we put or if we plot a characteristic, then we need a certain unit or scaling, then we convert that unitless quantity into decibel. That is the reason. Okay, so that is nothing but this common mode rejection ratio. और एक टॉपिक है उसका नाम है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो. इसका मतलब ये है कि अगर आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होता है तो आपका मतलब सप्लाई वोल्टेज चेंज होता है तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होता है. So that is a disadvantageous thing. Okay, that is called as power supply rejection ratio.
That is the change in op-amp input offset voltage due to change in the supply voltage. And it is given by the ratio change in के लिए ये एक ग्रीक सिंबल यूज किया जाता है, उसको इसका नाम है डेल्टा VIOS, और वो डेल्टा भी अपर केस में, क्योंकि ग्रीक सिंबल आपको मालूम है सब लोगों को कि अपर केस लोअर केस कैसे रहते हैं, सबको मालूम है। ओके, जैसे अपना ये अपर केस है और ये लोअर केस है, जैसे ही डेल्टा ये जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये अपर केस है और लोअर केस जनरली डी नाम से जाना जाता है, डी। एक्चुअली यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता आपको, अगर मैंने ओके ये पीपीटी है मेरी, ओके ये एक पीपीटी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इंसर्ट इक्वेशन सिंबल, तो आपको दिख रहा है क्या सिंबल? तो ये जो डेल्टा है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन, इसको बोलते हैं चेंज इन, दिस इज अपर केस डेल्टा। शायद आपको मैथमेटिक्स में अभी होगा, चालू होगा। अपर केस का डेल्टा है और लोअर केस का डेल्टा मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली इस तरीके का रहता है। ये हो गया, देखो इसका स्पेस किया तो वो डायरेक्टली डेल्टा हो गया। देखो ये आपको मालूम है कि जनरली स्पेस किया जाता है वो अपर केस हो जाता है वो। सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल कि वो डेल्टा ही है। सो दिस इज डेल्टा, ये लोअर केस वाला है। अपने शायद से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका चल रहा होगा मैथमेटिक्स में फर्स्ट M1 में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। डेल्टा मतलब चेंज इन, तो ये चेंज इन है, चेंज इन VIO डिवाइड बाय चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। सो इट इज आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज डिसएडवांटेजेस थिंग। मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज हो रहा है तो आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। सो इट इज डिसएडवांटेजेस। सप्लाई वोल्टेज मतलब VCC और VEE आप देते हैं ना, VCC और VEE, उसमें अगर चेंज हो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये इसका मतलब है। वो तो होना ही नहीं चाहिए, उसका कोई संबंध ही नहीं है। सो दैट इज मीनिंग दैट आइडियली वो जीरो चाहिए, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। दो योर सप्लाई वोल्टेज चेंजिंग, योर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज शुड नॉट चेंज। सो आइडियली इट शुड बी जीरो, and practically it is 150 microvolt per volt. That is the okay. Next is the slew rate. So what is basically this? Slew rate का मतलब है अगर आपका इनपुट वैरी हो रहा है तो एट द सेम टाइम आपका आउटपुट में रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि वो जो चेंज हो रहा है, मतलब it should sense within a fraction of second what happened at the input of op-amp, and appropriately or correspondingly the output voltage should get changed. कि एम्प्लीफिकेशन में जनरली अगर इनपुट सिग्नल आपका अगर उसकी थोड़ी इनपुट की अगर एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हुई तो आपका आउटपुट की एम्पलीट्यूड भी कम ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इट इज एम्पलीफायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट सिग्नल। तो उसकी जो एबिलिटी है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम व्हेन इनपुट वोल्टेज हैज बीन चेंज्ड इज कॉल्ड एज स्ल्यू रेट। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Slew rate. तो ये अच्छे, दिस इज अ गुड एडवांटेजेस थिंग। मतलब उसमें सेंसिटिविटी आपकी दिखती है ऑप-एम्प की, तो इसलिए मैंने बोला कि वो ऑप-एम्प इज वर्सेटाइल, फ्लेक्सिबल, सेंसिटिव, ये ड्यू टू दिस एबिलिटी। तो स्ल्यू रेट का मतलब है as change in input voltage takes place, your output voltage should get reflected at the same fraction of time. तो this is an advantageous property. Ideally वो infinity चाहिए, but practically it is high as possible, और वो है 0.5 volt per microsecond. This is a slew rate. So change in output rapidly, and that is why it is used for high frequency application. So this is the beauty of operational amplifier. So op-amp is used in waveform generation. So actually BJT or MOSFET based waveform generation is also possible, but the speed is the concern, and that is why op-amp based waveform generation is extremely popular in real life application. तो अपने सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर अपने लैब में उसमें op-amp based PCBs रहते हैं, इसलिए वो आपका आउटपुट वोल्टेज देता है एट द सेम टाइम। और जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड चेंज करते हो वैसे वैसे इंस्टेंटेनियसली आपको दिखाई देता है आपके CRO के ऊपर कि उसका ट्रेस, उसकी जो सिग्नल है वो उसका कम ज्यादा हो रहा है। दैट इज द रीजन। Okay, so these are
अभी इसमें मेरे पास कोई टेबल नहीं बनाया है मैंने, सॉरी। अगर मैंने टेबल बनाया होता कि ये सब मैं टैबुलर फॉर्म में आपको दिखाता कि ये जो चीजें मैंने आपको दी, these 10 things that I have shown you. Very first I have shown you is the voltage gain, second is input impedance, third is output impedance, then fourth is input offset voltage, then fifth is input bias current, input offset current, then bandwidth, then what we can say that the CMRR, common mode rejection ratio, ninth one is the power supply rejection ratio, and 10th one is the slew rate. तो ये टैबुलर फॉर्म में एक्चुअली रहता है मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है मेरे पास वो, क्योंकि दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। जो मेरे पास था तो वो मैंने अभी आपको दिखाया है। सो दीज आर नथिंग बट आइडियल एम्पलीफायर प्रॉपर्टीज, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये 10 चीजें जो मैंने आपको बोला थी। वोल्टेज गेन इंफिनिटी चाहिए, ओके, देन योर बैंडविड्थ इंफिनिटी चाहिए, ओके, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इंफिनिटी चाहिए, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो 0 चाहिए, इनपुट इंपेडेंस इंफिनिटी चाहिए, आउटपुट इंपेडेंस 0 चाहिए, स्लीव रेट इंफिनिटी चाहिए, ओके, देन इनपुट बायस करंट 0 चाहिए, इनपुट ऑफसेट करंट 0 चाहिए, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो भी 0 चाहिए। सो दीज आर नथिंग बट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अंडरस्टूड दिस वन? Am I audible to you? Yes, sir. Now we'll come to the next and last part of this is the op-amp inverting and non-inverting amplifier. So for this I am using PPT also because we have one small part in electronic circuit, second year subject related with the op-amp. I think it's 4th unit. I think it's application unit. Oh, no. It's a 5th unit. 5th unit, sorry. Application. No, ये नहीं है. 5th unit, application है वो. Op-amp application. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Inverting and non-inverting amplifier. ये आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने ये PPT ओपन की. Op-amp is used as different type of real life application. Why it is basically called op-amp, operational amplifier, क्योंकि अलग अलग एनालॉग सिग्नल के ऑपरेशन के ऊपर हम कर सकते हैं, इनपुट सिग्नल के ऊपर। कौन कौन से? जैसे कि एडिशन ऑफ द सिग्नल, उसको हम बोलते हैं एडर, ओके। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू सिग्नल, उसको हम बोलते हैं सबट्रैक्टर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तीसरा है कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के ऊपर और कोई भी एनालॉग सिग्नल के ऊपर, साइनोसॉइडल, ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव के ऊपर हम इंटीग्रेटेड ऑप्शन और इंटीग्रेशन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटर। इवन डिफरेंशिएशन ऑप्शन उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर। एंड वन ऑफ देम इज द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब इनपुट सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे दो और आउटपुट एम्पलीफाइड करके दिखाओ, नहीं तो इनपुट सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे दो और आउटपुट एम्पलीफाई करके दिखाओ। दैट इज नथिंग बट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके। एंड वेवफॉर्म जनरेशन, then also used in a comparator. So op-amp has great significance. उसका एक अलग area of specialization है, उसका नाम है analog integrated circuit design and application. This is one of the area of application or area of specialization in electronics engineering domain, okay. So that is due to op-amp. Op-amp is the basic building block और op-amp के भी अलग अलग variants है, अलग अलग model है, depending on the bandwidth capacity and the voltage gain capacity and अलग अलग performance parameter के ऊपर अगर हमने बात की तो। So ठीक है, we'll talk about first is inverting amplifier. So this is the circuit diagram of inverting amplifier. Is it clear? Is it visible to you? This is the circuit diagram of inverting amplifier. And let me tell you why it is called inverting amplifier. Because this is the symbol of operational amplifier, where it has a two input. One input is negative terminal input, that is called inverting amplifier, inverting input, sorry. This is the positive terminal input, which is called as non-inverting input. And
दिस इज द 6th नंबर पिन इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे VCC VE कहाँ पे, तो यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाए, यहाँ पे मैंने यूज नहीं किए। सो इसीलिए मैंने ये भी ओपन किया है और मैंने मेरी PPT भी ओपन की है, क्योंकि मेरी PPT में एक अच्छी खासी डायग्राम मैंने बनाई है और उसका नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। शायद से आपको ये दिख रहा है। तो ये VCC और ये नीचे VEE, नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। ये बीच वाला ऑप एम्प है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग द टू रेजिस्टर, से हियर R1 एंड से हियर RF। और हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट से सिग्नल, मतलब ये जो RF नाम का रेजिस्टर है वो इनपुट ऑफ द ऑप एम्प और आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प के बीच में मैंने लगाया है। तो इस सिग्नल को, मतलब जिस सर्किट में और जिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आउटपुट का सिग्नल हम उठा के इनपुट को कनेक्ट करते हैं तो उस सिग्नल को बोला जाता है फीडबैक सिग्नल। इस पाथ को बोला जाता है फीडबैक पाथ। और जिस पाथ में कोई भी कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं उसको बोला जाता है उस टाइप का फीडबैक कंपोनेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रजिस्टर यूज किया है और वो फीडबैक पाथ में यूज किया है, इसलिए उसका नाम है RF। इसका मतलब है फीडबैक रजिस्टर, RF। यहाँ पे R1 यूज हम कर रहे हैं और ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज में यहाँ पे थ्रू R1 आई एम कनेक्टिंग टूवर्ड्स this negative terminal, that is nothing but inverting terminal, and hence this amplifier is called as inverting amplifier. यहाँ पे वो दिख रहा है आपको, this positive terminal of AC voltage is connected towards this inverting terminal through R1, and this is RF, which is connected in between input and output, which is the feedback. वो input और output के बीच में आ रहा है। And one interesting term is called this non-inverting terminal is connected to ground. See here. तो इसमें भी आपको दिखाई देगा non-inverting terminal is connected to ground. And AC input voltage is connected to the inverting terminal of op amp, and hence this amplifier is called as inverting amplifier. तो ये एक चीज तो क्लियर है कि इनपुट एंड आउटपुट में फेज शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि इनपुट निगेटिव है तो आउटपुट डेफिनेटली एम्पलीफाई होगा। और आपको एम्पलीफाई क्यों होगा, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ large number of transistors, that is BJTs, then it has certain resistors, then it has certain protection circuitry like diodes. So definitely your output voltage will improve, it becomes stable, improve भी होगा, stable भी होगा, okay, और protected भी रहेगा due to over voltage and over thermal protection, वो होगा क्योंकि उसको IC पैकेज में इसीलिए तो किया है, बनाया है उसको। So op amp has another features also like this. तो आपका आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होगा एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज, और वो फेज शिफ्ट रहेगा 180 डिग्री, क्योंकि इसका इनपुट ही माइनस को दिया है तो फेज शिफ्टेड ही रहने वाला है वो। अभी हमको सिखाना है आपको कि रिलेशन क्या है इनपुट और आउटपुट के बीच में, व्हाट इज द रिलेशन। तो उससे पहले मुझे एक आपको कंसेप्ट बतानी है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। What is this concept? Physical ground को मालूम है, ये जो दिख रहा है that now I'm this shaded part that is called as physical ground. See, physically वो grounded है. And when we also know the term called as differential input voltage. Ideally differential input voltage is zero. ये हमने पहले देखा है. Okay, differential input voltage means the difference between the voltage that appeared in non-inverting terminal and inverting terminal. So I will call V1 is the voltage at non-inverting terminal and V2 is the voltage at inverting terminal. Okay, V1 and V2. So V1 is the voltage at non-inverting terminal, V2 is the voltage at inverting terminal. Differential input voltage is nothing but V1 minus V2. So ideally differential input voltage is zero. So V1 is equal to V2. V1 is equal to V2. So V1 is grounded, but V2 is connected to this node. देखो यहाँ पे एक नोड बनाया है मैंने, और ये जो नोड है, ये नोड कैसे बना है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ 10-12 वोल्ट, अगर कोई भी हो, वॉट एवर, आई डोंट नो इट, एक सिंबॉलिक कोई भी वोल्टेज होगा,
और वो वोल्टेज थ्रू R1 में यहाँ पे नोड बन रहा है और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है। तो इसका मतलब क्लियर है ये कोई जीरो नहीं है। दिस नोड इज नॉट अ जीरो वोल्टेज, इट डज नॉट हैव एनी जीरो वोल्टेज। ओके, एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा वोल्टेज होने वाला है। ओके, अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस फॉर्मूला, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए, इन दोनों रेजिस्टर के लिए यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज हियर currently. But one thing is very clear, that the voltage at this node is not zero. But according to concept that differential input voltage must be zero, इसका मतलब है V1 and V2 should be at same potential. But V1 is at grounded, so V2 should be grounded. But it is not grounded. It is not grounded, or it is not actually 0 volt, क्योंकि यहाँ पे कोई तो नॉन जीरो वोल्टेज रहेगा. So we imaginarily we consider it as a ground, and that concept is called as virtual ground. Virtual means not actual, it's imaginarily, and that is why it is called as virtual ground. So what is significance? ये इससे क्या होने वाला है? So this is a concept of virtual ground, and this is extremely important concept used in operational amplifier, virtual ground. So virtual ground में क्या है कि this V2 is virtually connected to ground. तो अगर ये grounded है, then definitely ये एक लूप बनाता है, क्योंकि करंट यहाँ से शुरू होगा और ये ग्राउंडेड को टर्मिनेट होगा. सिमिलरली करंट यहाँ से शुरू होगा और या इस ग्राउंडेड को टर्मिनेट होगा. So we can say that truly we can apply KVL for analysis purpose. This is required for me. So how you apply KVL? So KVL is applied like this. So how you have applied KVL? Now I am applying to KVL. यहाँ पे मैंने explanation दिया है कि what is the concept of virtual ground. So this is what virtual ground concept, which is I have mentioned here. Okay, and now I am going to explain you the relation between output voltage and input voltage. ठीक है? So current flows from this positive terminal of AC voltage comes through this R1. I say the current I say that the current flow through this R1 is say I, capital I. So ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस AC वोल्टेज से करंट फ्लो हो रहा है I नाम का, R1 के थ्रू जा रहा है और यहाँ पे ग्राउंडेड है, वर्चुअल ग्राउंडेड है, वहां पे वो टर्मिनेट हो रहा है. So according to KVL, it's a VS minus IR1 is equal to 0. See, now what I am using the concept by applying KVL, VS minus I into R1 equal to 0. You just confirm, give me the confirmation whether I am mentioning is right or wrong. VS minus IR, because current flows from positive to negative. So VS minus IR1 is 0. Another thing, तो यहाँ पे नोड है, करंट को तो दो पाथ है, मतलब आइदर वो RF के थ्रू जाएगा, नहीं तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू जाएगा. But we know that the current flow through this terminal is basically called input bias current, is ideally 0. Say IB1 current flow through V1, IB2 is current flow through this V2 means terminal के नाम है. तो this input bias current is ideally 0. तो इसका मतलब है कि पूरा करंट ये आया है, ये RF के थ्रू जाएगा. पूरा का पूरा करंट ये RF के थ्रू जाएगा. नाउ करंट पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, तो करंट ऐसे फ्लो होगा. तो ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी है. सो करंट विल फ्लो लाइक दिस. सो व्हाट इज योर रिलेशन? V out माइनस IRF, सेम करंट, कि वही तो करंट है, क्योंकि करंट फ्लो थ्रू दैट थ्रू दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल इज 0. सो यहाँ तक जितना करंट आ रहा है वही करंट यहाँ पे है. So same current is flowing. So VO minus IRF equal to 0. But we have to say it is a VO minus IRF is equal to. So ये equation है minus IRF minus VO is 0. क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है. Current flows from positive to negative. So minus IRF and this is minus V out is 0. तो इससे तो क्या बन रहा है आपको, ये तो मैं क्लियर करता हूं. What is the meaning of this? So your I is equal to or I can say that VS is equal to IR1.
क्योंकि माइनस आई आर वन राइट हैंड साइड में लेके गए तो वो आई आर वन होगा. आई कैन से आई इज इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाय आर वन. यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे है वी आउट इक्वल टू माइनस आई आर एफ. So what is I is equal to minus V out divided by RF. You just check whether I am writing correctly or not. So this is equation number 1. This is equation number 2. So what you are ultimately talking? Vs upon R1 equal to minus VO upon तो व्हाट इज वीओ देन? ये माइनस आर एफ इधर लेके जाओ और ये माइनस साइन भी उधर लेके जाओ. सो इट इज माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एस. वी जस्ट कंफर्म वेदर ये मैंने लिखा है सही है कि नहीं. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज? इज वीओ सप्लाई और इनपुट वोल्टेज इज वीओ इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एस. Output voltage is directly proportional to input voltage depending on which value of RF and R1 I'm using. If RF and R1 both are same, the output voltage and input voltage, they are same. So we cannot say it is amplifier. But to consider it as amplifier, we need to take the RF and R1 value such a way that we should get high amplification. So for example, RF is 100K, R1 is 1K. So your gain is 100. And why minus sign? The minus sign indicates your input and output waveform are out of phase. So what I want to tell you here is the relation. So VO is minus RF upon R1 into Vin. So phase shift between input, see this. This is input and this is phase shifted output. So phase shift between input and output is 180 degree. And gain is dependent on the value of RF and R1. So if both value are same, then we call it as a scale changer because gain is 1. तो ये जो बॉक्स किया है मैंने VO is minus RF upon R1 into V, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में. मैं क्या करूंगा, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू देख के रखूंगा से 1 मिली वोल्ट, RF की वैल्यू देख के रखूंगा से 1 किलो ओम, R1 की वैल्यू देख के रखूंगा से 1. आई थिंक मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है. लेट मी चेक. इज इट विजिबल एट योर एंड? जो मैंने लिया तो आपको समझ में आया? हेलो. Yes, sir. Yes. यस यस, आई हैव वन क्वेश्चन. आई थिंक मैंने देखा है ये इसके ऊपर कहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है. ओके, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्वेश्चन पूछा है. ओके, दैट आई विल कवर टुडे. एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि इन्वर्टिंग, कोई तो न्यूमेरिकल देखा है मैंने. लेट मी सी, कोई न्यूमेरिकल है क्या? अच्छा होगा तो मिले. यस, वेरी गुड. फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प, इफ RF is 100 kilo ohm, R1 is 10 kilo ohm, VCC plus or minus 10 volt, input voltage is 2 volt, what is your output voltage? What is your output voltage? So can you find the answer? आप सिंपल है ये क्वेश्चन. अक्टूबर 19 को पूछा है 5 मार्क के लिए. एक एक्सेलेंट न्यूमेरिकल है जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. और उसमें क्या दिया है, लेट मी शो यू. इसमें दिया है RF which is 100 kilo ohm, R1 which is 10 kilo ohm, V in, that is in our case VS, supply voltage is 2 volt and VCC is given. तो आप बोलेंगे कि VCC क्यों दिया है? That I will explain you in detail. Okay, 10 volt. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. और ये आपका क्वेश्चन है. तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने. तो व्हाट इज योर आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू यू? ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है. तो फॉर्मूला इज माइनस RF अपॉन R1 इंटू V in. RF इज गिवन, R1 is given,
V in is given. What is V out? What is the answer? Plus or minus 10 volt VCC दिया है. What is your answer of V? Can you tell me? 20, sir. Yes. 20. Good. Very good. So this is, you get 2 marks. My dear friend, you get 2 marks. 2 or 3 marks. But next question is important. Next question is important. सर -20 होगा ना? क्या क्या? -20 होगा ना? है ना -20 ना? ये लिखा ना मैंने. यस सर. हाँ. Next question is important. 2 mark मिल गए आपको. Is the result in the part 1 practically possible? Justify. So my dear friend, already I have told you that कि it is not like that कि आपको ये मेरा न्यूमेरिकल पीपीटी कहाँ पे मेरी, यहाँ पे मेरी पीपीटी, ये न्यूमेरिकल 20 वोल्ट हो गए. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप ये एम्पलीफायर है तो आप इनपुट बढ़ाओ तो आपको और आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एम्पलीफायर वही करते हैं ना. फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर की गेन 10 है यहाँ पे. कैसे समझ में आया कि RF/R1 इज द गेन, क्योंकि वही तो गेन है ना. व्हाट इज द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? इज RF/R1 which is 100k divided by 10k which is just a 10. तो आपका गेन 10 है यहाँ पे, आपका गेन 10 है यहाँ पे. तो अगर आपने इनपुट 10 वोल्ट दिया तो आपका आउटपुट 100 वोल्ट मिलेगा. अरे पॉसिबल है क्या? इट्स नॉट लाइक दैट. योर ऑप एम्प विल गो इनटू सैचुरेशन रीजन. तो व्हाट इज द, नाउ ये टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं लिया है तो ये यहाँ पे मैं लूंगा. सो व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज दैट you can attain by using this inverting amplifier? The answer is plus or minus VCC or VEE. For example, plus VCC or minus VEE. That means that कि अगर आपका आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा जा रहा है, then your op amp will go into saturation region. Saturation region किसका? BJT वाला saturation region. And that is nothing but your ohmic region, and it acts as a switch. It acts as a switch. And it will not act as an amplifier. Goes into saturation region. If your value of your output voltage, if it is go beyond plus VCC or minus VEE, your op amp goes into saturation region, acts as a switch and not acts as amplifier. So the maximum permissible value of any inverting and non-inverting amplifier is the plus or minus VCC. So here the answer is minus 20 volt. तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि प्लस और माइनस VCC 10 वोल्ट है, तो ये उससे बड़ा है. तो इट इज पॉसिबल. सो योर आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड. Is result in part 1 practically possible? No, it is not possible practically. So what is the output voltage then? Output voltage is minus 10 volt. This is the answer. This is for 5 marks. Have you understood, my dear friend? Yes, sir. Yeah, so this was a question that has been asked for exam, and in next lecture I will cover non-inverting amplifier, the expression of output voltage, relation between output voltage and input voltage, and one numerical which has been asked in exam. ये देखो यहाँ पे वो पूछा है March 20 को. For inverting amplifier using op amp, RF दिया है, R1 दिया है, VCC दिया है. VCC प्लस और माइनस मतलब माइनस VE पर ये के रखा है उन्होंने, और बोले कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज फॉर V is 3 वोल्ट. अगेन वही कमेंट ऑन रिजल्ट, मतलब वही है कि आपको वही बोलना है कि अगर आपका आउटपुट वोल्टेज बियॉन्ड VCC और VE जा रहा है, देन यू नीड टू गिव कमेंट जस्टिफिकेशन वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. तो ये भी 5 मार्क के लिए March 20 को पूछा है. So that I will cover in my next lecture. Okay? So अगर आपने देखा होगा तो मैंने सब टॉपिक लिया है. देखो एक March 20 का देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT हुआ है, मॉसफेट स्विच हुआ है, ये न्यूमेरिकल कर लेंगे. ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ BJT, देन ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल ये लिया है. उसके बाद ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट, functional powder. So you just go through the content that every part I have taken and not a single part I have skipped. Am I right? Am I clear to you? Yes, sir.
Yes, so you will definitely, because already all things are uploaded, so you do not require, don't worry about things. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. Okay, thank you, To sir. attend the lecture at actually 3 p.m. because we have syllabus detailing meeting because our new year subject has revised with the board of studies. So that is why I cannot take the lecture at our prescribed time. Okay, thank you. Anyhow.